फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहां तक न सरकार में कोई काम करना है, ना ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है, चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। अगर उनको इतना विश्वास था तो सेशन कोर्ट में कॉसिंग डालते कि मेरे खिलाफ चार्ज ही गलत है। वो तो आपने रोड शो वगैरह में कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे फिर जेल में कोई नहीं भेजेगा। देखिए अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जिन्होंने इनको इंटरिम बिल दिया है उनको सूचना है, इसके बड़ा इनका कंटेम और कोई हो नहीं सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट देश का विजय पराजय के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? मैं नहीं कह रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं तो सुना भी नहीं, आपने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा है। परंतु अगर ये उन्होंने कहा है तो देश की सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग पर उनका बहुत गलत टिप्पणी है। क्या उनके बाहर आने से और उनकी जो ये टीका टिप्पणी से इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है आपके नजरिए से? देखिए मैं ऐसा मानता हूं एक मतदाता के नाते कि जहां जहां वो जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। अब फायदा हो गया, नुकसान आप तय कर लीजिए। पंजाब में हाँ, प्रचार में जहां जहां जाएंगे शराब घोटाला ही लोगों को दिखाई देगा। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखाई पड़ेगी। मैं उड़ीसा की तरफ मुड़ती हूँ। प्रधानमंत्री ने नवीन बाबू के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट किया था और नवीन बाबू ने भी फिर एक वीडियो बनाया। पहले कभी ऐसे होता नहीं था उड़ीसा में प्रधानमंत्री जी और नवीन बाबू के बारे में, मतलब कोई एक दूसरे के खिलाफ ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट्स करें। नहीं, देखिए किसी भी नेता का स्टेटमेंट जो होता है वो हालिया स्थिति को देखकर किया जाता है। अभी की स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट किया और मैं भी मान रहा हूं कि वहां सरकार बदलने जा रही है। So you heard the Union Home Minister talk about Arvind Kejriwal's appeal that he's making to people, saying if you vote for me, I will not have to go to jail. Union Home Minister Amit Shah says that is the biggest contempt of court, and the interim bail given to Arvind Kejriwal is not a relief, but the Aam Aadmi Party is trying to project it as some sort of a victory. We have Mohit joining us from on ground where the protest currently is underway of the BJP Mahila Morcha. BJP Mahila Morcha has hit the streets. They are offering bangles to Arvind Kejriwal. They are saying you did not act when Swati Maliwal was being assaulted in your own house. The BJP in fact also says don't be mistaken because it's not Bibhav. The directions came from the CM himself. Mohit, if you can hear me, the latest reaction on Arvind Kejriwal's comment that if you vote for me, I will not have to go to jail has come in from Amit Shah. The Union Home Minister has slammed Kejriwal. He says this is the biggest contempt of court. Well, yes, Swati, Home Minister Amit Shah has slammed Arvind Kejriwal. On one hand, we see that politics is being played on this particular issue. On the other hand, we have seen that how the legal process is also happening when it comes to Swati Maliwal's case. And Swati, we know that how these visuals tell a different story, that this is a flash protest that is happening just outside the residence of Arvind Kejriwal. Now, the BJP Mahila Morcha workers gathered here suddenly. There was no information to the police, and now the senior officials of Delhi police have arrived over here. They are carrying bangles in their hand. They say that no action is being taken by Arvind Kejriwal against Bibhav Kumar, and this is something which is very shocking. A man who always used to talk about the morals, morality in politics, is not taking any action. This is what the BJP says as of now. Let's talk to a few of the people and ask them what are they saying. मैम, आप लोग चूड़ियां लेके आए हैं, विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट हो गई है, FIR हो गई है, क्या मांग करेंगे अब? हम इनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा दिया, महिलाओं के
सम्मान के लिए आए हैं और एक महिला वो भी है और एक महिला हम लोग भी हैं, तो उनके सम्मान के लिए आज आए हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए, इसलिए उनके लिए चूड़ी लाए हैं। सबका सम्मान नहीं कर सकता, वो भारतीय जनता का क्या सम्मान करेगा, क्या सम्मान करेगा? सवाल मैम यही है कि एक महिला सांसद के साथ सीएम के घर में ऐसी घटना होती है, फिर भी वो जो आरोपी है, जिसपे आरोप है, हालांकि जांच होगी, हम आरोपी हैं अभी, वो फिर भी अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के वेन्यू के बाहर दिखते हैं, फ्लाइट में साथ जाते हैं। दोगला चेहरा है केजरीवाल जी का, वो दिल्ली की जनता को कुछ कहते हैं और वो अपने घर में कुछ करते हैं, राक्षसी बना देते हैं, बुद्धू बनाते हैं। हम उनको क्योंकि आम आदमी पार्टी की नीति रही है महिलाओं का अपना बड़ी जल्दी बुद्धू बना देते हैं, भाई और अपने आप को अपने भाई और बेटा समझते हैं और फिर अपने माँ और बहनों के बेच केजरीवाल महिला को Stay on with us. We're getting some breaking inputs now. I'll come back.